Ninth standard and welcome to English class. Today we are going to continue with prose 1, the fun they had. In our previous lecture, we had studied till how Margie was disappointed as county inspector came to her place and adjusted the geography sector to her level. Sixth para, Tommy looked at her Tommy looked at her with very superior eyes. Why did Tommy look at her with superior eyes? Because Margie asked him, how can somebody write a book on school? Right? So Tommy, he looked at her with superior eyes. Superior eyes means, when do we have superior eyes? When somebody is senior to us and is trying to, show or boast that I know more than you. As जैसे हमारे कोई फ्रेंड्स जो सीनियर्स होते हैं या हमारे सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर्स होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं तो दे ट्राई टू शो दैट दे नो मच मोर देन अस राइट तो उसी तरह टॉमी जो था वो मार्जी से बड़ा था टॉमी he looked at her with superior eyes and he said they wrote a book on school. Why? Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. So what did Tommy say? That they had to write a book on school. Why? Because ये हमारे जैसा school नहीं था. What does Tommy mean by हमारे जैसा school? Not our kind of school. Means कि जो स्कूल था उनका टॉमी और मार्जी का स्कूल कैसा था वर्चुअल स्कूल था दे हैड मैकेनिकल टीचर मशीन कंप्यूटर्स वगैरह थे जिसके थ्रू वो लोग पढ़ रहे थे they did not have the school building like us they did not have a teacher as human being teacher है ना तो that is why he's saying कि वो स्कूल और काइंड ऑफ स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है जो hundreds and hundreds of years ago है मतलब वो हमारे टाइप के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं because the story is written in future 2157 and 2155 वो वाली स्टोरी है he added lofty का मतलब क्या होता है lofty is something when you try to show that you know more than the other person right in a superior way pronouncing the word carefully centuries ago Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie जो थी उसको थोड़ा बुरा लगा. Why? Because Tommy ने उसको stupid भी बोला and Tommy was, the way he was telling her as if he knows more than her. So, but still, Margie, she asked him, कि मुझे तो पता नहीं है उस स्कूल के बारे में एंड देन शी आस्क्ड हिम वेदर दे हैड अ टीचर मतलब हम लोगों के पास हमारे स्कूल के बारे में बातें हो रही है अभी वेदर दे हैड अ टीचर sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man टॉमी बोलता है yes of course they had a teacher but it was not a regular teacher regular मतलब it was not a normal teacher उनके लिए normal teacher कौन है मैकेनिकल मशीन जो उनको पढ़ा रहा है ना वर्चुअल क्लासरूम्स एंड रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट लेकिन देन ही सेड इट वाज अ मैन मतलब उनके लिए बहुत ही फनी चीज थी कि कोई मैन मतलब हियर दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर जो था उनके पास a man how could a man be a teacher then they discuss that एक human being teacher कैसे हो सकता है because they feel human being is not so smart enough so as to teach anyone है ना अब उनको ये पता नहीं है कि भाई कंप्यूटर किसने बनाया कंप्यूटर भी एक ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions अब यहाँ पर टॉमी सेइंग वेल जो ह्यूमन बीइंग जो टीचर था
centuries ago, मतलब हम हमारी जैसी स्कूल में वो बॉयज और गर्ल्स को चीजों के बारे में बताता था, रिलेट करता था, होमवर्क देता था और क्वेश्चंस पूछता था. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. अब मार्जी बोलती है कि मैन इतना स्मार्ट इनफ नहीं होता है सो एज टू टीच एनीवन. तो टॉमी सेज नहीं हो सकता है बिकॉज माय फादर ही नोज एज मच एज माय टीचर. उनका टीचर, मैं बार बार क्या बता रही हूँ, उनका टीचर क्या था? मशीन, मैकेनिकल, है ना, कंप्यूटर एंड ऑल दैट. तो टॉमी बोलता है मेरे पापा को भी वो सब आता है जो मेरे टीचर को आता है. दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग इज स्मार्ट एज द मशीन. He knows almost as much. I bet. I betcha. Betcha matlab I bet. I'm sure. Right? This is the informal word. I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी बोलती है कि I would not want कि कोई strange person as a teacher मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी screamed with laughter. तो टॉमी जोर से हंसता है. You wouldn't know much. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी बोलता है कि जो टीचर्स थे उस टाइम के वो लोग घर में नहीं रहते थे. वो सब एक बड़ी बिल्डिंग में, दे आर टॉकिंग अबाउट हमारा जैसे फिजिकल स्कूल है वैसे. The teachers they didn't live in the house. They had a special building. और वहां पर सारे बच्चे पढ़ने जाते थे. जैसे आप सब लोग स्कूल में पढ़ने आते हो. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. मतलब अगर एक ही एज के बच्चे हैं तो सब एक ही तरह की चीजें सीखते थे. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कि हर एक ग्रेड, जैसे 5th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे एक ही तरह की चीजें सीखते हैं, 6th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे एक ही तरह की चीज सीखते हैं, है ना. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. तो मार्जी बोलती है कि मेरी मम्मा बोलती है कि टीचर कैसा होना चाहिए जो हर एक बॉय और गर्ल के माइंड से, मतलब हर एक किड, हर एक बच्चा जो पढ़ने आ रहा है, हर एक स्टूडेंट के माइंड से फिट होना चाहिए. Because every child is different, right? So everybody has to be taught differently. अब जैसे आप लोग, आपकी स्कूल में क्या होता है, जैसे टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, राइट? सो फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, वो तुरंत एक ही बार में समझ जाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं, उसके बाद वो समझते हैं. कुछ बच्चे बहुत बार एक्सप्लेन करो तो भी नहीं समझ पाते, राइट? बिकॉज एवरीबडी हैज द ओन कैलिबर टू अंडरस्टैंड, है ना. तो वैसे ही मार्जी बोल रही है कि माय मदर सेज द टीचर हैज टू एडजस्ट. जैसे आपके टीचर्स एडजस्ट करते हैं. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. तो टॉमी थोड़ा अनॉयड हो जाता है. वो बोलता है मतलब यही लिखा हुआ है इस बुक में और अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो. जैसे तुम लोग फ्रेंड्स एक साथ बैठते हो तो आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है ना. तो वैसे ही इधर मार्जी और टॉमी की भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है. तो मार्जी बोलती है कि मुझे तो ये बुक पढ़नी है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स. उसको बहुत फनी लग रहा था कि ये क्या है. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. अब उन्होंने थोड़ा बहुत, अभी पूरा पढ़ा भी नहीं था कि मार्जी की मम्मा उसको बुलाती है कि योर स्कूल टाइम, राइट? सो मार्जी सेज मम्मा स्टिल देयर इज टाइम. अभी खत्म नहीं, अभी टाइम है. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो मिसेस जोन, मार्जी की जो मम्मा है, वो बोलती है टॉमी का भी स्कूल टाइम हो गया है. लेट हिम आल्सो गो. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said,
nonchalantly. तो मार्जी टॉमी को, because that was Tommy's book, तो मार्जी बोलती है after school can I read the book with you? तो nonchalantly मतलब इतना इंटरेस्ट ना दिखाकर टॉमी बोलता है maybe. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और वो विसल करता हुआ वो बुक जो थी उसकी वो आर्म्स के नीचे रखता हुआ चला जाता है. Margie went to the school room. मार्जी कहाँ गई? स्कूल रूम में, राइट? Where is the school room? Where is the school room? अभी मार्जी का स्कूल कहाँ पर है? उसके घर पर ही. So in the same way, जैसे आप लोगों का लेक्चर टाइम होता है अभी, because everything is online, तो अभी आपके भी मम्मा बोलते हैं now enough, it is lecture time, okay? तो वैसे ही मार्जी की भी मम्मा आए and मार्जी goes to the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब जैसे आप लोग आपका लैपटॉप या पीसी अभी ऑन कर देते हो जब आपका जो है मीटिंग शेड्यूल किया हुआ होता है लेक्चर टाइम में, उसी तरह मार्जी का भी जो स्कूल रूम था, इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी वो ऑलरेडी ऑन थी एंड इट वाज वेटिंग, मैकेनिकल टीचर वाज वेटिंग फॉर हर. It was always on at that same time every day except Saturday, Sunday. So that means उसका जो टाइम टेबल था वो शेड्यूल था, it was on that particular time. वो मैकेनिकल टीचर वो ऑन कर देते थे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे वाज ऑफ, है ना, उनको छुट्टी होती होगी. Because her mother said little girls learn better if they are learned at regular hours. And it seems that Margie's mother was little strict, right? She was a disciplined mother. And she said that, you know, जब भी कोई particular time पे regular hours में सीखा जाए, तो हम जल्दी सीख पाते हैं. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और स्क्रीन ऑन हुआ और जो मैकेनिकल टीचर थी, she said today's arithmetic lessons, that is the maths lecture, and today उनका टॉपिक क्या था? Addition of proper fractions. And the screen पर ये भी टीचर ने बोला कि अपना कल का होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में डालो, इंसर्ट करो. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब Margie, though she was sitting over there, जैसे आप में से भी कुछ लोग ऑनलाइन लेक्चर में बैठ तो जाते हैं लेकिन कुछ और चीजें फिजिट कर रहे होते हैं ऑनलाइन टीचर का लेक्चर ऑन करके, या कुछ और सोच रहे होते हैं, है ना. तो उसी तरह मार्जी भी जो जो थी वो क्या सोच रही थी? अबाउट द ओल्ड स्कूल, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे तो जाते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे आप सब लोग एक साथ स्कूल आते हो, है ना, फिर एक साथ स्कूल से जाते हो, तो कितना अच्छा लगता है ना. जैसे अभी आप सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, तो यू हैव नॉट मेट योर फ्रेंड्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो यू आर मिसिंग स्कूल, बिकॉज स्कूल्स खुलेंगे तो हम टीचर्स से तो मिलेंगे ही लेकिन फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, है ना. तो ये सारी चीजें तो मार्जी के साथ नहीं होती है बिकॉज वो तो वर्चुअल स्कूल में पढ़ती है. तो वो हमारे टाइप की स्कूल को सोच रही थी और बोलती कितना अच्छा होगा वो टाइम का स्कूल. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. So she's thinking कि अगर एक ही तरह की जैसे आप सब लोग सीखते हो तो आप you can help your friends out. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and 1/4. अब मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर सिखा रहे हैं लेकिन मार्जी का तो ध्यान कहीं और ही है. कहाँ पर है? ओल्ड स्कूल में. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had
and Margie was thinking what? कि how wonderful, कितना अच्छा ना कि पुराने टाइप का स्कूल, सब बच्चे एक साथ जाते, एक साथ फन होता, मजा आता. और मार्जी वॉज थिंकिंग कि कितना मजा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किड्स को आता होगा. Okay, with this we end this chapter, and this is your exercise, your textual exercise, right? Which you have to do it in your notebook. Okay, but on Saturday I am going to give you a practice test.